میرے محترم بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارے سے پہلے بھی بے شمار لوگ، بے شمار عورتیں، بے شمار انسان آئے ہیں۔ ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، ان کے قد بھی زیادہ تھے، ان کی طاقت بھی زیادہ تھی، ان کی حیثیت بھی زیادہ تھی، لیکن آج وہ زمین کے نیچے ہیں، قبروں کے اندر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر۔ مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی سفر بنا مقصد کے، بنا منزل کے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر، اور آگے فرمایا ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 سال کے آس پاس ہوں گی۔ ایوریج عمریں، اکثر عمریں 60-70 سال کے آس پاس ہوں گی۔ اور مثالیں دی ہیں اللہ کے نبی نے کہ دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے، صحابہ کو دی ہے، عورتوں کو دی ہے کہ دنیا کی مثال کیا ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کیا ہے دنیا کے مقابلے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں انگلی ڈالی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمندر میں انگلی ڈالو، آواز کر دو اس کی، اسی سے کرو جس میں لگایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سمندر میں انگلی ڈالو، انگلی پر کتنا پانی ہے اور سمندر میں کتنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے انگلی کا پانی سمندر کے مقابلے میں بہت کم ہے، ایسی میرے بھائیوں بہنوں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے۔ ایسے سمندر میں انگلی پر لگا ہوا پانی کتنا کم ہے، نہ کے برابر ہے، اور سمندر لامحدود ہے، اسے کوئی تول ہی نہیں سکتا۔ ایسے میرے بھائی بہنوں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے، بہت ہی تھوڑی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے بھائی بہنوں، اس دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہا، ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر زندہ کو مرنا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، ہر زندہ کو مرنا ہے۔ ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، کوئی چیز نئی نہیں رہتی، پرانی ہو جاتی ہے، جن کو آدمی استعمال کرتا ہے، اور دنیا چھوڑ جانی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے اسی دنیا کو فائنلی کہا کہ بس یہی ہے اور یہی ہے سب کچھ، یہی ہے سب کچھ، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کے لیے ہے، دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے، دنیا آخرت کو بنانے کے لیے ہے۔ یہی سب کچھ نہیں ہے اور نہ ہی یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی کاروبار، یہی بیوی بچے، یہی پیسہ، یہی ملک مال، یہی سب کچھ نہیں ہے، اور یہی سب کچھ نہیں ہے، یہی سب کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ یہاں تو تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی تھوڑی خوشیاں ہیں، تھوڑی تھوڑی غمیاں ہیں، تھوڑی تھوڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ جب آدمی دین سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو اس کا ذہن میک اپ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ بس یہ آدمی دھوکے میں چلا گیا، نقصان میں چلا گیا اور گھاٹے میں چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو عورت، مرد ہیں کہ عورت ہیں، کہ جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، یہ ہے جہالت۔ جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس کی عقل جاتی رہی اور اللہ کا عذاب اس کے قریب آ گیا۔ بتاؤ، یہ فرمایا ہے حضرت علی نے
کہ جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ بس یہی سب کچھ ہے، کماؤ کھاؤ اور انجوائے کرو، کماؤ کھاؤ اور عیش کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس کی عقل جاتی رہی اور اللہ کا عذاب اس کے قریب آ چکا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بلا اس پر آ سکتی ہے، کبھی بھی کوئی مصیبت اسے برباد کر سکتی ہے، کیونکہ اس نے قرآن کے خلاف سوچا ہے، نبی کے خلاف سوچا ہے، حدیث کے خلاف سوچا ہے، اللہ والوں کے علم کے خلاف سوچا ہے۔ کہ جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اس کی عقل جاتی رہی اور اللہ کا عذاب اس کے قریب آ چکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بہنوں، بار بار اللہ کا ذکر ہے، بار بار اللہ کی دعوت ہے، بار بار آخرت کے تذکرے ہیں، بار بار اللہ کو سنتے رہنا ہے، تاکہ ہمارے دل میں غلط چیز جگہ نہ پکڑ لے، تاکہ ہمارے دل میں غلط یقین پیدا نہ ہو جائے، غلط دھیان پیدا نہ ہو جائے، کسی غلط چیز کا یقین پیدا نہ ہو جائے۔ جب آدمی کے دل میں غلط چیز کا یقین آ جاتا ہے تو پھر یہ غلط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو راستہ بھی نہیں ملتا صحیح اور نہ ہی کوئی منزل ملتی ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کی باتیں بار بار سنائی جاتی ہیں، بار بار اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، بار بار دین کے تذکرے کیے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں کا جو رخ ہے، ہمارے دلوں کا جو دھیان ہے وہ اللہ کی طرف رہے، نبی کی طرف رہے۔ آدمی دنیا کو جب سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، کاروبار کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، پیسے کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے نافرمان ہوتا ہے۔ اس کی زندگی سے امنوں کی کمی آئے گی، نمازوں کی کمی آئے گی، دین کی کمی آئے گی، اللہ کے دھیان کی کمی آئے گی، اللہ کی محبت کی کمی آئے گی، جب آدمی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی گھاٹے کی چیز ہے، یہی نقصان کی چیز ہے، یہی پریشانی کی چیز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے، حدیث لے کر آئے، کلمہ لے کر آئے، نماز لے کر آئے، روزہ لے کر آئے، اور یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے مسافر۔ ہم مسافر ہیں، مالک نہیں ہیں، ہم مسافر ہیں، مالک نہیں ہیں۔ ایک مسافر سفر کرتا ہے بس میں، ایک مسافر سفر کرتا ہے بس میں، اور اس کی ایک منزل ہوتی ہے، اور کسی کام سے سفر کرتا ہے، وہ بس میں بیٹھ کر مسافر یوں کہے میں اس کا مالک ہوں، میری بس ہے، میں اس کا مالک ہوں، میری بس ہے، تو کیا ہوگا وہاں؟ تو نقصان ہوگا، جھگڑا ہوگا، اس کو دھکے دھکے مار کر باہر کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور وہ مسافر ہے، ٹکٹ اس کے پاس ہے، منزل اس کے پاس ہے، تو مسافر آدمی کہے یہ ٹرین کا مالک میں ہوں۔ ہماری کار میں بیٹھ کر آدمی کو یوں کہے میں اس کا مالک ہوں، ہمارے کھیت میں کھڑا ہو کر آدمی یوں کہے کہ میں اس کا مالک ہوں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں توڑ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اور بڑی تباہی ہوتی ہے۔ ایسی میرے بھائیوں بہنوں، جب لوگ مسافر کی جگہ اپنے آپ کو مالک بنا لیتے ہیں، مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، تب تناؤ ہوتا ہے، تب جھگڑے ہوتے ہیں، تب نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی ہمیں تعلیم دے دی ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر، زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر۔ اگر ہم مالک ہوتے میرے بھائیوں بہنوں، اگر ہم دنیا کے مالک ہوتے تو دنیا چھوڑ کے نہ جاتے، اگر ہم گھر کے مالک ہوتے تو گھروں سے ہمارے جنازے نہ اٹھتے، اگر ہم دکانوں کے مالک ہوتے ہمیشہ کے لیے تو دکانوں سے ہمارے جنازے نہ اٹھتے، اگر ہم اپنے کھیت کے مالک ہوتے تو کھیت چھوڑ کے زمیندار نہ مرتا، اگر ہم دنیا کے مالک ہوتے، ملک کے مالک ہوتے تو ملک والے ملک چھوڑ کر نہ مرتے، اگر بادشاہ مالک ہوتا اپنی حکومت کا تو حکومت چھوڑ کے، محل چھوڑ کے آج وہ قبروں میں پڑے ہیں۔ ہم مسافر ہیں، مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہہ رہے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، سب میری ہی تو ہیں، میں نے ہی بنائی ہیں اور تمہارے لیے بنائی ہیں۔
जितनी नियामतें हैं दुनिया में, जितनी चीजें हैं दुनिया में, जितनी सरमाएदारी है दुनिया में, अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह ही की तारीफ है, अल्लाह ही की नियामतें हैं, अल्लाह ही चीजों का रब है, अल्लाह ही हमारा मालिक है, अल्लाह ही हमारे बच्चों का मालिक। जो बहनें, जो औरतें, जो मर्द हर टाइम ये तसव्वुर करते हैं, ये ख्याल करते हैं कि मैं और मेरा माल अल्लाह का, ये ईमान में तरक्की करते रहते हैं, इल्म में तरक्की करते रहते हैं, दीन में भी तरक्की करते रहते हैं, इनकी नियामतों में भी तरक्की होती रहती है। जो लोग यूं कहते हैं दिल से, दिमाग से और जुबान से कि मैं और मेरा माल अल्लाह का है, मेरा नहीं है, मैं और मेरी जिंदगी अल्लाह की है, मेरी नहीं है, मैं और मेरी जवानी अल्लाह की है, मेरी नहीं है, मैं और मेरे बीवी बच्चे अल्लाह के हैं, मैं इनका खुदा नहीं हूँ, मैं और मेरा खेत अल्लाह का है, मैं इसका खुदा नहीं हूँ, मैं और मेरी दुकान अल्लाह की है, मैं इसका मालिक नहीं, मालिक अल्लाह है। इससे मेरे भाइयों बहनों, आदमी के दिल में दीन की तलब पैदा होती है, आदमी अल्लाह के करीब होता है, आदमी दीन के करीब होता है। जब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं मैं और मेरा माल मेरा है, मैं और मेरा माल मेरा है, मैं और मेरी जवानी मेरी है, मैं और मेरी ताकत मेरी है, मैं और मेरा घर मेरा है, ये क्या है? ये जहालत है, ये शिर्क है, ये गुनाह है। ये कहना शिरक है, ये कहना गुनाह है, ये कहना नाफरमानी है कि मैं और मेरा माल मेरा है। ये तो कानून ने कहा था मैं और मेरा माल मेरा है, ये फिरौन ने कहा था मैं और मेरा मुल्क मेरा है, ये बात नमरूद ने कही थी मैं और मेरा मुल्क मेरा है, ये बात शैतान ने कही थी कि मैं और मेरी बड़ाई मेरी है। यहाँ से तोड़ पैदा होता है, अल्लाह नाराज होना शुरू होते हैं कि सब कुछ देके अल्लाह हलाक करते हैं, सब कुछ देके अल्लाह हलाक करते हैं, सब कुछ देके अल्लाह हलाक करते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी बेदीनी है, बहुत बड़ा शिर्क है कि मैं और मेरा माल मेरा है। अलग को झूठ साबित कर देते हैं। जब आदमी का इंतकाल हो जाता है, एक फूटी कोड़ी साथ नहीं जाती। कहाँ गया इसका माल? एक कपड़े भी कैंची से काट दिए जाते हैं, एक कानों के जेवर भी उतार दिए जाते हैं, ये नाक के जेवर भी उतार दिए जाते हैं, हाथों के जेवर भी उतार दिए जाते हैं, पाँव के जेवर भी उतार दिए जाते हैं, गले के जेवर भी उतार दिए जाते हैं, घर से बाहर कर दिया जाता है, महल से बाहर कर दिए जाते हैं, अलग अलग कमरे में लटा देता है। सारी रात लोग जागते हैं, सारी रात लोग जागते हैं। उस कमरे में जाते हुए डर लगता है जिसमें डेड बॉडी पड़ी होती है। बाज मरतबा तो मेरे भाइयों बहनों, लोग उसके इस्तेमाल किए हुए गिलास से भी डरते हैं। इसमें इसने पानी पिया था, उस गिलास से भी नफरत करते हैं। ये जूते उसके हैं, उन जूतों को भी इस्तेमाल नहीं करते। उस चारपाई पे नहीं सोते जिस चारपाई पे मरा था, उस थाली में खाना नहीं खाते जिस थाली में ये खाना खाता। गिलास से भी घबराहट, प्लेट से भी घबराहट, इसकी चारपाई से भी घबराहट। नहीं इसकी चारपाई पे नहीं सोता, कभी हमारा बुरा ना हो जाए। उसके गिलास में पानी नहीं पीते कि भाई ये गिलास मैयत का है, इसको अलग कर दो रसोई से। ये क्या है? ये बेदीनी का असर है, ये बेदीनी का असर है। जब आदमी की जिंदगी में अल्लाह का हुक्म होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता है, अल्लाह का हुक्म होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता है, कुरान होता है, इबादत होती है, अल्लाह का जिक्र होता है, वे सहाबा इकराम से लोग आज कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके कपड़ों से लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके जूतों से आज कितनी मोहब्बत करते हैं। उनके टूटे हुए घर आज तक जिंदा हैं, उनके टूटे हुए घरों को भी लोग देखने जाते हैं, उनके जूतों की लोग ज़ियारत करते हैं, उनके बालों की लोग ज़ियारत करते हैं, उनकी तलवारों की लोग ज़ियारत करते हैं और उनके बच्चों के नाम से बच्चों के नाम रखते हैं। जो रुमाल है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल किया हुआ है, लोग उसे देखने जाते हैं। कश्मीर में एक बाल है अल्लाह के नबी के चेहरे का, लोग उसे देखने जाते हैं। हजरत बिलाल के जूते पड़े हैं, उनको लोग देखने जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले को लोग देखने जाते हैं।
भाइयों बहनों, दीन कीमती है, कुरान कीमती है, अल्लाह कीमती है। बेकीमती चीज दीन से जुड़ जाती है, वो भी कीमती बन जाती है। गलत चीज दीन से जुड़ जाती है, वो भी अच्छी हो जाती है। बुरी चीज दीन से जुड़ जाती है, वो भी अच्छी हो जाती है। नाफरमान लोग दीन से जुड़ जाते हैं, ये भी भले हो जाते हैं, ये भी अच्छे हो जाते हैं। वसल्लम ने ऐसी मेहनत की है, औरतों पर भी, मर्दों पर भी, बच्चों पर भी, नौजवानों पर भी ऐसी मेहनत की है। उनको कपड़े ये नहीं कहा कि कपड़े अच्छे हो जाएंगे तुम अच्छे हो जाएंगे, जेवर अच्छे हो जाएंगे तुम भी अच्छे हो जाएंगे, जमीनें अच्छी हो जाएंगी, घर अच्छे हो जाएंगे तुम भी अच्छे हो जाएंगे। ये कहीं नहीं कहा, किसी हदीस के अंदर नहीं है, किसी कुरान के अंदर नहीं है कि चीजें अच्छी तो इंसान अच्छे, ऐसा नहीं है। दीन होगा तो लोग अच्छे होंगे, ईमान होगा तो लोग अच्छे होंगे, कुरान होगा तो लोग अच्छे होंगे, इबादत होगी तो लोग अच्छे होंगे। चाहे पहले जमाने में वो जालिम थे, कातिल थे, नाफरमान थे, चोर थे, डाकू थे, कुछ भी थे, लेकिन जब वो दीन से जुड़े, क्या कहने, कुरान में उनके जिक्र है। जब वो दीन से जुड़े, उनकी औरतें दीन से जुड़ी, उनके बच्चे दीन से जुड़े, उनके गलत लोग दीन से जुड़े। हजरत उमर बन गए, अबू बकर सदीक बन गए, हजरत खदीजा बन गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 2 शादी हुई थी हजरत खदीजा की, बच्चे भी थे, तीसरा निकाह नबी से हुआ था। 2 शादी पहले हो चुकी थी गैर मुस्लिमों से। तो कितने बुरे माहौल से निकलकर नबी के माहौल में आई, कितने शिर्क को छोड़कर, कितने कुफर को छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माहौल में आई। तो कैसी औरत बनी, कैसी औरत बनी। अल्लाह के सलाम आए खदीजा के ऊपर, अल्लाह के सलाम आए खदीजा के ऊपर, अल्लाह के सलाम आए हैं। अरब की सबसे मालदार औरत है, अरब की सबसे मालदार औरत है हजरत खदीजा। तो नबी का साथ दिया, दीन को कबूल कर लिया, ईमान को कबूल कर लिया। तो दुनिया में इस उम्मत में सबसे पहली औरत है जिस पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम आए और अल्लाह के सलाम आए। फरिश्ता सलाम लेकर आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूलुल्लाह खदीजा को अल्लाह ने सलाम कहा, खदीजा को अल्लाह ने सलाम कहा। कितना बड़ा दर्जा है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं कि मेरे घर में जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे और सलाम करके जाते थे। फरिश्ते सलाम करने आ रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, फरिश्ते आए हैं, घर का सलाम, घर का काम कर रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं रोटी बना रही थी, मुझे जरूरत पड़ी बाहर जाने की, रोटी बना रही थी, मुझे जरूरत पड़ी बाहर जाने की। मैंने अल्लाह के नबी से कहा, या रसूलल्लाह 1-2 पेड़े हैं, आप इनकी रोटी बना दो। हजरत आयशा बाहर चली गई, अल्लाह के नबी ने पेड़े को तैयार किया, उसकी रोटी बनाई और तवे पर डाल दी। साथ दे रहे हैं घर के काम में। ये नहीं कहा कि तू नौकरानी है, ये नहीं कहा कि तू कुत्ती है, ये नहीं कहा कि तू पैर की जूती है। आजकल तो मुहावरे हैं दुनिया में, थोड़ी देर में ऐसा बना देते हैं औरतों को जैसे नौकरानी है, थोड़ी देर में। बहुत लोगों को हमने कहते हुए देखा, औरत तो पैर की जूती है। ये काफिरों की आवाज है, ईमान वालों की नहीं। ये नाफरमान लोगों की सोच है, ईमान वालों की नहीं। अल्लाह के नबी ने पेड़ा तैयार किया, रोटी बनाई और तवे पर डाल दी, तवे पर डाल दी। आग तप रही थी, तवा भी तप रहा था, लेकिन रोटी नहीं पकी। वो गीली की गीली थी, नरम की नरम थी। हजरत आयशा आई, या रसूलल्लाह कमाल है, आपसे एक रोटी भी तैयार नहीं हुई, कमाल है, आपसे एक रोटी भी तैयार नहीं हुई। यानी आग ने उसे न पकाया न जलाया, न पकाया न जलाया, न सख्त किया। जब बात हो रही थी, हजरत कह रही थी, हजरत खदीजा, हजरत आयशा, आपसे रोटी नहीं बनी या रसूलल्लाह। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गया आसमान से फरिश्ता आ गया घरों में, कहने लगा, या रसूलल्लाह
جس چیز میں آپ کا ہاتھ لگ جائے گا اس چیز پہ دنیا کی آگ بھی حرام ہے، جہنم کی آگ بھی حرام ہے۔ کیسے جلا دے گی یہ آگ؟ آپ کا ہاتھ جو لگ چکا ہے، آپ کا نورانی ہاتھ لگ چکا ہے، آپ کا روحانی ہاتھ لگ چکا ہے، یہ قیامت تک نہیں روٹی پکے گی۔ کیوں؟ آپ کا ہاتھ لگ چکا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہمارے نبی کے ہاتھ میں اتنا نور ہے کہ روٹی کو آگ نہیں جلا سکی، روٹی کو آگ نہیں جلا سکی۔ جب اس پاک نبی کے طریقے ہماری زندگی میں ہوں گے، ہماری بہنوں کی زندگی میں ہوں گے، بہنوں کی زندگی میں ہوں گے، بیٹیوں کی زندگی میں ہوں گے، جب اس پاک نبی کے طریقے، جب روٹی نہیں جلی آگ کے اندر، روٹی نہیں جلی پکی توے کے اندر، تو جس نبی کا دین ہمارے لیے آیا ہے اس نبی کا طریقہ ہمارے گھروں میں، کاروبار میں آئے گا، ہماری زندگی میں آئے گا، تو دنیا کی آگ بھی ہمارے اوپر حرام ہے، جہنم بھی ہمارے اوپر حرام ہے، ساری چیزیں ہمارے اوپر حرام ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی اثر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی اثر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی اثر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز میں کم اثر ہے یا کسی میں زیادہ اثر ہے، نہیں، آپ کی ذات میں بھی اتنا اثر ہے، آپ کی بات میں بھی اتنا ہی اثر ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں نبی کی طاقت کے مقابلے میں ذرہ ہے، ذرہ ہے، مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے۔ اتنی طاقت ہے ہمارے نبی کی ذات میں، اتنی پاور ہے ہمارے نبی کی ذات میں، اتنی طاقت ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اس لیے محنت کی جاتی ہے دین کی، تاکہ اللہ کے حکم ہماری زندگی میں آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی میں آئے، ہمارے نبی کے طریقے میں ہمدردی ہے، ہمارے نبی کے طریقے میں سچائی ہے، ہمارے نبی کے طریقے میں بھائی چارہ ہے، محبت ہے، سکون ہے۔ کوئی بھی نبی کا طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں ہماری تباہی ہو، جس میں ہماری بربادی ہو۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر، اللہ سے ہٹ کر جو کام کیا جائے گا اس میں تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ برے لوگ کتنے اچھے بنے، بری عورتیں کتنی اچھی بنی ہیں، قتل کرنے والے لوگ صحابی بنے ہیں، قاتل صحابہ بنے ہیں، شراب پینے والے لوگ صحابی بنے ہیں، کھوپڑیوں میں شراب پینے والے صحابی بنے ہیں، کلیجہ کھانے والی عورت صحابیہ بنی ہے، خون پینے والی عورت صحابیہ بنی ہے، گانے والی عورتیں صحابہ بنی ہیں، بدتمیز عورتیں صحابہ بنی ہیں، بد اخلاق عورتیں صحابہ بنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک عورت آئی مدینہ کی، بے شرم عورت تھی، بے حیا عورت تھی، طائف عورت تھی، طائف۔ تو اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے تو آ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اکیلے کھانا کھا رہے ہو، مجھے نہیں پوچھ رہے ہو؟ یعنی کتنی بے شرم ہوگی، کتنی بے حیا ہوگی، کھڑی ہوگی آ کر، بے پرد، بے حیا، بے شرم عورت، ابھی وہ ایمان نہیں لائی، طائف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آجا تو بھی کھا لے، اس سے کوئی نفرت نہیں کی، کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ تو جہنمی عورت ہے، بے دین عورت ہے، بلکہ اس نے کہا اکیلے کھانا کھا رہے ہو، آجا تو بھی کھا لے۔ اللہ کے نبی نے اسے اپنی پلیٹ میں بٹھایا۔ اتنی ہمدردی ہے، اتنا درد ہے ہمارے نبی کے دل میں۔ ایسی عورتوں کی بھی قدر ہے ہمارے دین میں، ایسی عورتوں کی بھی قدر ہے ہمارے نبی کے ہم۔ تو عورت آ گئی، پلیٹ میں بیٹھ کر کھانے لگی، پھر وہ کہنے لگی اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ۔ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے، پھر وہ کہنے لگی آپ کے جو منہ میں جھوٹا ہے یہ میرے منہ میں رکھو۔ اللہ کے نبی نے اپنے منہ کا جھوٹا اس کے منہ میں لقمہ رکھا، جیسے ہی آپ کا لقمہ اس کے منہ میں گیا، ایک دم اس کے اندر نور پیدا ہو گیا، حیا پیدا ہو گئی، اس میں نور پیدا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے پردہ کراؤ، میرا دوپٹہ کہاں ہے، میرا پردہ کہاں ہے؟ ایک دم کلمہ پڑھا، صحابیہ بن گئی۔ نبی کے جھوٹے میں اتنا نور ہے، نبی کے جھوٹے میں اتنی شفا ہے۔ ایک دم عورت کی زندگی بدل گئی اور وہ صحابی بنی، اس کی نسل سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔
बड़े लोग पैदा हुए। मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह को राजी करना सबसे ज्यादा आसान है, अल्लाह को खुश करना सबसे ज्यादा आसान है। लोगों को बनाना बड़ा मुश्किल है। रिश्तेदारों को नाराज किए हुए रिश्तेदारों को मनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टाइम लगता है। सबसे जल्दी अल्लाह राजी होते हैं, सबसे जल्दी अल्लाह राजी होते हैं, सबसे जल्दी नबी राजी होते हैं, सबसे जल्दी अल्लाह राजी होते हैं। इतना कोई राजी नहीं होता जितना अल्लाह राजी होते हैं। कत्ल करने वाला भी अल्लाह को राजी कर सकता है, शराब पीने वाला भी अल्लाह को राजी कर सकता है, बेदीन आदमी भी अल्लाह को राजी कर सकता है। फिरौन जैसा आदमी हो वो भी अल्लाह को राजी कर सकता है, नमरूद जैसा आदमी हो वो भी अल्लाह को राजी कर सकता है, कारून जैसा आदमी हो वो भी अल्लाह को राजी कर सकता है। अल्लाह ने अपने आप को रहमत वाला बनाया है, माफ करने वाला बनाया है, दर्जे देने वाला बनाया है। अल्लाह बदला नहीं लेते, अल्लाह किसी को तबाह नहीं करते। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकाला जाता है, इसलिए दीन की मेहनत की जाती है, इसलिए कुर्बानी ली जाती है। इसलिए औरतों को भी कहा जाता है जान मान लेकर अल्लाह के रास्ते में निकलो। बड़ों को भी कहा जाता है, बच्चों को भी कहा जाता है, बेटियों को भी कहा जाता है। नबी को भी अल्लाह ने कहा अल्लाह के रास्ते में निकलो, सहाबा को भी अल्लाह ने कहा अल्लाह के रास्ते में निकलो। उनकी औरतें अल्लाह के रास्ते में निकली, उनके मर्द अल्लाह के रास्ते में निकले। कोई घर में होता है तब भी अल्लाह के रास्ते में निकलते थे, वो नहीं होता था तब भी अल्लाह के रास्ते में निकलते थे। क्योंकि जो अमल इंसानियत की भलाई के लिए होता है, जो अमल इंसानियत की भलाई के लिए होता है, जो अमल इंसानों की हिदायत के लिए होता है, जो अमल इंसानों को जन्नत में ले जाने के लिए होता है, उसका असर भी ज्यादा है, उसका असर भी ज्यादा है, उसका असर भी ज्यादा है। जो अमल अपने अपने लिए होता है, सिर्फ अपने अपने लिए नमाज मेरी नमाज मेरे लिए है, मेरा रोजा मेरे लिए है, मेरा हज मेरे लिए है, मेरा कुरान मेरे लिए है। मेरी नमाज से उम्मत नमाज पर नहीं आएगी, मेरे कुरान पढ़ने से उम्मत कुरान पढ़ने वाली नहीं बनेगी, मेरे हज करने से उम्मत दीन पर नहीं आएगी। इसलिए बड़ी ताकतवर दुआ अल्लाह के नबी ने हमें दी है, बड़ी जानदार दुआ, बड़ी शानदार दुआ अल्लाह के नबी ने हमें और आपको दी है। क्या दुआ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अल्लाह जो मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाए। सुनो कितनी बड़ी दुआ है कि अल्लाह जो मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाए, उसकी जिंदगी में हमेशा बाहर रखना, हमेशा बाहर रखना। कभी उसकी जिंदगी में खिजा ना आए, कभी उसकी जिंदगी में पतझड़ ना आए। अल्लाह जो मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाए, दावत के जरिए से, मेहनत के जरिए से, उसकी जिंदगी में कभी पतझड़ ना आए, कभी पतझड़ ना आए, हमेशा सदा बाहर रहे। ये नबी की दुआ है। दावत का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एक दूसरे को दावत देते हैं, मुल्कों में लेके चलते रहते हैं दीन की दावत को। अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाह वो आदमी हमेशा हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा बहार रहे, उसकी जिंदगी में हमेशा बहार रहे, कभी पतझड़ ना आए, कभी खिजा ना आए। उसकी जिंदगी में हमेशा बहार रहेगी, घरों में हमेशा बहार रहेगी। नबी की दुआ है। जो नबी की बात को, अल्लाह की बात को दूसरों तक पहुंचाएगा, अल्लाह उसकी जिंदगी में बहार रखेंगे, अल्लाह उसकी जिंदगी को हरा भरा रखेंगे। इसलिए फरमाया है कि हम अपनी फिक्र भी करेंगे, आलम की फिक्र भी करेंगे, अपनी फिक्र भी करेंगे, दूसरों की फिक्र भी करेंगे। इसमें हमारी जानें भी लगेंगी। जान तो जानी है, जान तो जाने के लिए है, जान तो जाने के लिए है, जान रहने के लिए नहीं है, जान जाने के लिए है, जवानी जाने के लिए है, बुढ़ापा भी जाने के लिए है, उम्र भी बीतने के लिए है, उम्र भी जाने के लिए है। ये कोई चीज रहने के लिए नहीं है, कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है। जाने भी चली जाएंगी, नौजवान भी चले जाएंगे, हुक्मरान भी चले जाएंगे। वो दुनिया में रहा कोई दुनिया में। हम इस तरीके से जी रहे हैं कि हमेशा यही रहना है, हम इस तरीके से रह रहे हैं, हमेशा यही रहना है। यही हमारी गलती है, यही हमारी गलती है कि हमारी बेफिक्री को देखकर, हमारी जिंदगी को देखकर, हमारा मशगूल होने को देखकर, हमारे बिजी होने को देखकर ऐसा लगता है हमने दुनिया छोड़ दी नहीं, हमने दुनिया छोड़ दी नहीं, हमने हमेशा अमर रहना है, हमेशा जिंदा रहना है।
جو لوگ آخرت کی محنت میں لگے رہتے ہیں، دین کی محنت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، ان کی دنیا پہلے بنتی ہے پھر آخرت بنتی ہے، پہلے دنیا بنتی ہے، پہلے دنیا بنتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بھی قربانی لی، ان کی عورتوں کی قربانی لی، بچوں کی بھی قربانی لی، نبی کی بھی قربانی لی، یہاں تک کہ میرے بھائیو بہنوں، ایک قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، قربانی کا مہینہ چل رہا ہے، یہ قربانی کا مہینہ ہے، جان دینے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ اپنا جان مال اللہ کا سمجھو، ہمارا جان مال اللہ کا ہے، ہماری زندگی اللہ کی ہے، ہمارا خون ایک ایک روواں ایک ایک خون کا قطرہ اللہ کا ہے۔ سنو بات، اگر جان ہماری ہوتی ہم مرتے کیوں؟ اگر جوانی ہماری ہوتی بوڑھے کیوں ہوتے؟ اگر تندرستی ہماری ہوتی بیمار کیوں ہوتے؟ اگر بچے ہمارے ہوتے ہمارے سامنے کیوں ان کے جنازے اٹھتے؟ ان کا مالک اللہ ہے، ان کا مالک اللہ ہے، ان کا مالک اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کی قربانی لیتے ہیں جو سب سے زیادہ بندے کو پسند ہو۔ یہ ہے ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ اگر اللہ سے زیادہ، سنو میرے بھائیو بہنوں، اگر اللہ سے زیادہ بچوں سے محبت ہوگی، یہی ہماری خطا ہوگی، یہی ہماری غلطی ہوگی۔ اگر اللہ سے زیادہ ہمیں بچوں سے محبت ہے، اللہ سے کم ہے، اللہ سے زیادہ دکان سے محبت ہے، اللہ سے زیادہ دنیا سے محبت ہے، کھیتوں سے محبت ہے، یہ ہماری خطا ہوگی، یہ نقصان کی چیز ہے، یہ گھاٹے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بچے بھی اللہ نے دیے ہیں، چیزیں بھی اللہ نے دی ہیں، دینے والا بڑا ہوتا ہے، بڑا پیدا کرنے والا بڑا ہوتا ہے، زندگی دینے والا بڑا ہوتا ہے، سب کچھ دینے والا رب ہوتا ہے، سب کچھ دینے والا رب ہے، سب کچھ رب سب کچھ کا مالک ہے۔ 96 سال کی عمر میں پیدا ہوئے بچہ، 96 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی، 96 سال کی عمر میں پیدا ہوئے اسماعیل۔ محبت بڑھ گئی، اسماعیل کی محبت بڑھ گئی دلوں میں، کیونکہ بڑھاپے میں جو بچہ ملتا ہے اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، خواب آیا، خواب میں اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، خواب میں نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اس خواب کے مطابق نبی کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں ظاہر کر دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو، اپنے بیٹے کی قربانی دو 7 تاریخ کو، ہر مہینہ، یعنی جو بقرعید کا مہینہ ہے، خواب آیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو، اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ فرشتے بھی حیران ہیں، فرشتے حیران ہیں، آسمان کے فرشتے حیران، یہ کون سا زمانہ ہے، بیٹے قربان ہوں گے، بیٹوں کی قربانی دی جائے گی آئندہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اے ابراہیم، اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اپنی بیوی سے کہا بچے کو تیار کرو، میں نے اس کو کسی سے ملانا ہے، کسی کے ہاں دعوت ہے، اس کو میرے ساتھ تیار کرو۔ حاجرہ نے اسے تیار کیا، اس کو غسل کرایا، اس کو کپڑے پہنائے اور تیار کر دیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بیٹے کی قربانی دو، تب جا کے تیری نبوت آگے بڑھے گی، تب تو میرا نبی مانا جائے گا، تب تو میرا نبی مانا جائے گا اگر بیٹے کی قربانی دے گا۔ بتاؤ، بیٹے کی قربانی مانگ رہے اللہ۔ میرے بھائیو بہنوں، حاجرہ نے بیٹے کو تیار کر دیا اور روانہ ہو گئے۔ فوراً شیطان آیا کس کے پاس؟ عورت کے، حاجرہ کے، کہ کہاں ہے بیٹا؟ کہ وہ گئے ہیں کسی دعوت میں، دوست سے ملنے گئے ہیں، کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے آج ذبح کرنا ہے، اس کے گلے پہ چھریاں چلی ہیں، آج اسے ذبح کرنا ہے، تو رو کر اسے چھڑوا لے، واپس لے آ، اللہ کا حکم ہے اسماعیل کی قربانی ہوگی آج۔ تو ماں نے کہا شیطان کو
भाग जा यहाँ से, कबीस चला जा यहाँ से। 7 पत्थरियां मारी उसके साथ। इसलिए 7 कंकरियां मारते हैं, पहले शैतान को, दूसरे को भी 7, तीसरे को भी 7। 7 पत्थरियां मारी उसको कि चला जा यहाँ से। अगर 100 इस्माइल भी होते, अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, तो हमारी खुशनसीबी है। अल्लाह के नाम पर मेरा बेटा जा रहा है, अल्लाह के नाम पर मेरा बेटा कुर्बान हो रहा है, कबीस चला जाए यहाँ से। अगर 100 इस्माइल भी होते, सब अल्लाह के नाम पे कुर्बान। ये कहा हाजरा ने। रब राजी, सब राजी। अगर अल्लाह राजी है तो कोई कमी नहीं है, अगर अल्लाह नाराज है तो कमी ही कमी है, घाटा ही घाटा है, नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह की नाराजगी के साथ आदमी मर गया, दोनों जहां की बाजी हार गया। अल्लाह की नाराजगी के साथ आदमी का जनाजा उठ गया, क्या हाथ लगा? कुछ भी नहीं हाथ लगा, कुछ भी नहीं हाथ लगा। अल्लाह की नाराजगी के साथ ये मैयत बन के चला गया, डेड बॉडी बन के चला गया, जनाजा बन के चला गया। जिस दुनिया के लिए इसने दीन को छोड़ा था, जिस कारोबार के लिए, बीवी बच्चों के लिए इसने दीन को छोड़ा था, दुनिया को कबूल करके दीन को छोड़ा था, मौत के वक्त वो दुनिया भी छूट गई, मौत के वक्त वो दुनिया भी छूट गई। नमाज पहले छूटी हुई थी, अल्लाह पहले छूटा था। मौत के वक्त जिस दुनिया की वजह से इसने अल्लाह को छोड़ा था वो भी छूट गई, दीन भी छूट गया। न इधर के रहे न उधर के, दोनों जहां की बाजी हार गए, दोनों जहां की बाजी हार गए, दोनों जहां की बाजी हार गए, दोनों जहां की बाजी हार गए। एक ऐसी औरत है हाजरा, कहने लगी 100 इस्माइल भी होते, 1000 इस्माइल भी होते, सब अल्लाह के नाम पे कुर्बान। बच्चों ने अलग तो होना ही है, बच्चों ने भी मरना है, ये तो है नहीं। अगर हम दीन में नहीं लगेंगे हमेशा हम रहेंगे, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, दीन के रास्ते में नहीं जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में नहीं रहेंगे, हमेशा दुनिया में रहेंगे, हमेशा कारोबार करते रहेंगे, हमेशा बल्ले बल्ले हमारी रहेगी, हमेशा हम दुनिया में रहेंगे। ऐसा कोई है मेरे भाइयों बहनों? ऐसा है। हम दीन पर चले न चले फिर भी दुनिया छोड़नी है जी। कितनी कदर है हमारे यहाँ नमाज की, कितनी कदर है हमारे यहाँ दीन की, कितनी कदर है हमारे यहाँ अल्लाह की। ये भी औरत है हाजरा, इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने कुर्बानी के लिए बेटा मांगा है। 100 इस्माइल भी होते, 1000 इस्माइल भी होते, सब अल्लाह के नाम पे कुर्बान। शैतान मायूस होके फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया कि तेरी कुर्बानी होगी, आज तेरे गले पे छुरी फिरेगी। कि क्यों? कि अल्लाह का हुक्म आया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि इस्माइल की कुर्बानी दो। तो उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आज अल्लाह के नाम पे मेरी जान जाएगी, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। उसने भी 7 पत्थरियां मारी और भगाया वहां से जी, उसको भी भगाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे तेरा क्या ख्याल है? मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ है इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए, बेटे की कुर्बानी देने के लिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे अब्बा आप जो अल्लाह ने कहा कर दीजिए, आप मुझे कुर्बान कर दीजिए, छुरी कुर्बान कर दीजिए। आप मुझे सब्र करने वालों में पाओगे, सब्र करने वालों में पाओगे। खुद ही लेट गए और कहा, अब्बा जान पट्टी बांध लेना, आंखों पर पट्टी बांध लेना, कभी मेरे चेहरे से आपको रहम आ जाए, वो छुरी ना चले, और मेरे हाथ बांध देना, मेरी टांगें बांध देना, ताकि मेरा हाथ आपके ऊपर ना लग जाए, और मुझे उल्टा लेटाना, उल्टा, ताकि चेहरा देखकर आपको रहम ना आ जाए। किया है पहले लगाना था।
ये है मेरे भाइयों दोस्तों। इस्माइल ने कहा अब्बा जी पट्टी बांध लेना, मेरे हाथ बांध देना और मुझे चेहरे के मुंह लेटा देना ताकि आपको रहना। बताओ, खुद ही लेट गए, खुद ही लेट गए इस्माइल अलैहिस्सलाम। नीचे भी नबी है, ऊपर भी नबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तैयार है बेटे को कुर्बान करने के लिए और बेटा भी तैयार है अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने के लिए। जैसे मेरे भाइयों बहनों छुरी फेरने का इरादा किया, अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया, क्या छुरी एक बाल भी ना काटना, एक बाल भी ना काटना। छुरी को हुक्म हो गया अल्लाह का डायरेक्ट, कोई फरिश्ता नहीं भेजा छुरी के लिए, अल्लाह ने डायरेक्ट छुरी को हुक्म दिया, एक रुआ भी ना काटना, एक बाल भी ना काटना। इस्माइल भी नबी है, इनके अब्बा भी नबी है। जब छुरी चली तो एक न चली है, न बाल कटा है, न खाल कटी है। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी, क्या कहा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये 3 तकबीरें हैं। पहली तकबीर कही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऊपर से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए मिंडा लेकर, जिब्रील अलैहिस्सलाम मिंडा लेकर, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये है तकबीर। तो मेंढे को छुरी के नीचे कर दिया, इस्माइल को खड़ा कर दिया। जब पट्टी खोली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों खड़े। आसमानों से मेंढा आया, क्यों? कुर्बानी कबूल हो गई। उन्होंने सच्चे दिल से कुर्बानी दे दी। अल्लाह देखना चाहते थे कि मेरा इब्राहिम इस्माइल को ज्यादा चाहता है या मुझे ज्यादा चाहता है, इस्माइल से ज्यादा मोहब्बत करता है या मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ख्वाब में सच्चे हो गए और छुरी फेर दी और मेंढा आ गया और एक बेटा और दे दिया, इसहाक अलैहिस्सलाम। जो शुक्रगुजार होते हैं, कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं, अल्लाह उनको ज्यादा देते हैं। बेटा भी आ गया और एक बेटा और पैदा हो गया और अल्लाह का हुक्म हो गया कि जो भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद को जिंदा करेगा, जो भी इस्माइल की कुर्बानी की याद को जिंदा करेगा, बकरा कुर्बान करके, मेंढा कुर्बान करके, जितनी बकरे पर बाल हैं, जितने बकरे पर बाल हैं, उतनी नेकी अता फरमाएंगे और उतना ही सवाब अता फरमाएंगे जितना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का है, बेटे के गले पे छुरी चलाने का है, उतना ही अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, हमारे बड़ों ने बेटे कुर्बान कर दिए, सहाबाई कराम ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। एक सहाबी आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है, मेरा भाई भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है, मेरा बाप भी अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुका है। आपका हुक्म हुआ है अल्लाह के रास्ते में कुछ लगाने का, कुछ खर्च करने का। मेरे पास ना माल है, ना सोना चांदी है, ना मेरे पास भाई है, ना मेरा शोहर है, सब अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो चुके हैं। ये छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसको लेकर आई। ये सहाबिया लेकर, या रसूलल्लाह इसे अल्लाह के रास्ते में ले जाओ ताकि मेरा भी हिस्सा पड़ जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए, इसे भी अल्लाह के रास्ते में ले जाओ ताकि मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बच्चा क्या काम आएगा, क्या काम आएगा? तो उस औरत ने कहा या रसूलल्लाह, जब दुश्मन आप पर तलवार का वार करेंगे, इसकी ढाल बना के इस्तेमाल कर लेना, इसकी जान चली जाएगी अल्लाह के नाम पर, ये शहीद हो जाएगा। मैं कल क़यामत के दिन खड़ी होकर कहूंगी अल्लाह एक बेटे की शहीद बनकर आई, एक शहीद बेटे की मां बनकर आई, एक शहीद बेटे की मां बनकर आई। हमारे बड़ों ने दीन को हमारे तक पहुंचाने के लिए, हमारे बड़ों ने दीन को हमारे तक पहुंचाने के लिए खून की कुर्बानियां दी हैं,
बच्चों के खून की कुर्बानियां दी हैं, औरतों के खून की कुर्बानियां दी हैं। हमारे बड़ों ने ईमान को, दीन को हमारे तक पहुंचाने के लिए बच्चों के खून की कुर्बानी दी है, औरतों के खून की कुर्बानी दी है। सबसे पहली कुर्बानी इस उम्मत में, सबसे पहली कुर्बानी इस उम्मत में किसकी है? हजरत ज़ैनब की है। ये नबी की बेटी है, हजरत ज़ैनब की है। इसको खंजर मारा है, ये शहीद हुई है। सुमैया को खंजर मारा है, इनके खून बहा है, ये भी अल्लाह के यहाँ कबूल हुई है। नबी का खून बहा है, इनका खून, अल्लाह के नबी का खून पूरी उम्मत के लिए हिदायत बना है, ताइफ के लिए हिदायत बना है। ज़ैनब का खून पूरी उम्मत के लिए हिदायत बना है, सुमैया का खून पूरी उम्मत के लिए हिदायत बना है। मेरे भाइयों बहनों, हजरत उस्मान को शहीद किया गया, अली को शहीद किया गया। हमारा पसीना भी ना लगे, पसीना भी ना लगे, घर बैठे बैठे जनाजे उठ जाए, ये है हमारी कमजोरी। पहले जमाने की औरतें अकेली घर में रहती थी, लेकिन बेटे को अल्लाह के रास्ते में, शोहर को अल्लाह के रास्ते में, अकेली घर में है। हजरत उमर का जमाना है, हजरत उमर का जमाना है। नई शादी हुई, एक नौजवान की नई शादी हुई, बच्चा भी पैदा होने वाला है, औरत भी उम्मीद से है, बच्चा पैदा होने वाला है। थोड़े दिन के बाद बच्चा पैदा होना था। हजरत उमर ने तश्कील कर दी कि अल्लाह के रास्ते में जाना है। ये घर में आए, कहने लगे मुझे अल्लाह के रास्ते में जाना है। हजरत उमर का हुक्म है कि औरत कहने लगी मैं अकेली रह जाऊंगी, जाओ आप अल्लाह के रास्ते में, मेरे बच्चे का भी मालिक अल्लाह है और मेरा भी। इसने चलते टाइम दुआ की, इस साथी ने चलते टाइम दुआ की, क्या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में जा रहा हूँ, अल्लाह मैं तेरे रास्ते में जा रहा हूँ, मेरा बच्चा तेरे पास मेरी इमानत है, मेरा बच्चा तेरे पास अमानत है। यानी बच्चा होने वाला था महीने 2 महीने में, बीबी हमल से है, बच्चा होने वाला है, अल्लाह के रास्ते में निकल चुका है। बीबी को इसने अल्लाह के हवाले किया, अल्लाह ये मेरा बच्चा है, इस अमानत को मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ, तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ, जब मैं वापिस आऊंगा तेरे से ले लूंगा। इसने बच्चे के लिए दुआ की, अल्लाह मेरा होने वाला बच्चा तेरे सुपुर्द है, मैं तेरे हवाले करता हूँ, और अल्लाह के रास्ते में चले। जब वापिस आए मदीना, बीबी का भी इंतकाल और बच्चा पैदा होने से पहले बीबी का इंतकाल। बताओ, जब वे मदीना आए, घर में ताला था, मुकद्दर है, मुकद्दर का लिखा मिट नहीं सकता, नबी भी नहीं मिटा सकता। मुकद्दर में लिखी है मौत, सबके मुकद्दर में मौत लिखी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सबके मुकद्दर में मौत लिखी है। अल्लाह को मौत नहीं है, अल्लाह मौत देते हैं, अल्लाह को मौत नहीं। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेंगे, बाकी सबको मरना है, सबको दुनिया छोड़नी है। जब ये नौजवान मदीना आया, सुनो, जब ये नौजवान मदीना आया, घर में ताला था, दिल में ख्वाहिश थी इसके, अब मेरा बच्चा चलते यानी थोड़ा बड़ा हो गया होगा, मुझे घर जाते ही मिलेगा, बीवी भी मिलेगी। जब अल्लाह के रास्ते से वापस आया, बड़ी खुशी लेकर आया, बड़े अरमान लेकर आया। जब पता चला तेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है और बिना बच्चे यानी बच्चा ही पैदा नहीं हुआ था, बड़ा सदमा हुआ। सब्र किया, बर्दाश्त किया, कोई शिकायत नहीं अल्लाह के। ओके, ईमान बना हुआ था कि अल्लाह के फैसले पे राजी रहना, अल्लाह के फैसले पे राजी रहना जरूरी होता है, फर्ज होता है। अल्लाह के फैसले पे शिकायतें करना, अल्लाह के फैसले से नाराज होना, अल्लाह के फैसले से नाखुश होना, नाराज होना, गुस्सा होना, ये तो मुनाफिकों का काम है, नाफरमानों का काम है। न खुशी अच्छी न मलाल अच्छा, जिस हाल में अल्लाह रखे वो हाल अच्छा। अगली सुनो, शाम हुई शाम, सामने जन्नतुल बकी है, मदीना का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जन्नतुल बकी। जो वहां दफन होता है वो जन्नती होता है, ये हदीस में जन्नतुल बकी।
जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत की वादी है वो। तो उसके भाई ने कहा, चाचा के लड़के ने, कि भाभी का तो इंतकाल हो गया, बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, बच्चा भी साथ ही ले गई वो कब्र में। बड़ा सदमा हुआ, सब्र किया। शाम को क्या देखते हैं कि कब्रिस्तान में जिस कब्रिस्तान में उस औरत को दफन किया था, जिस कब्र में उस औरत को दफन किया था, उसके चारों तरफ आग लगी हुई है। दिसंबर का, जनवरी का महीना था, बड़ी सख्त सर्दी होती है, मदीना में हवा चलती है, तो उस कब्र के चारों तरफ आग है। तो उसने पूछा जिसकी बीवी थी, भाई ये आग क्या है? कि हर रोज जलती है शाम के टाइम, हर रोज जलती है शाम के टाइम। कोई डर की वजह से इसके पास नहीं जाता। कि किसकी कब्र है? कि आपकी बीवी की कब्र है, ये भाभी की कब्र है, आपकी अहलिया की कब्र है। तो ये गए वहां कब्र को देखने, ये कब्र को देखने गए हैं वहां। ये दोनों भाई निकले मदीना की कब्रिस्तान में। तब देखा उस औरत की कब्र फटी है, चारों तरफ आग है। हिफाजत के लिए कोई जानवर ना आए, ताकि सर्दी से वो बच्चा परेशान ना हो, कोई जानवर ना आए। यानी देखो उस कब्र में एक तरफ बीवी पड़ी है और बच्चा खेल रहा है, जिंदा कब्र में जिंदा बच्चा खेल रहा है। अल्लाहु अकबर, कब्र में जिंदा बच्चा, और बीवी ऐसे पड़ी है मरी हुई, बच्चा जिंदा है। वो कब्र के अंदर उतरा, उसने बच्चे को उठाया और गले से लगाया और बाहर आ गया। वो कब्र मिल गई और आग भी बुझ गई। आसमान से आवाज आई। अल्लाह ने उसको बताया, अल्लाह ने आसमान से आवाज आई कि मेरे बंदे, जब तू अल्लाह के रास्ते में निकला था, तूने मुझसे दुआ की थी, अपनी इमानत को मेरे हवाले किया था, अपनी इमानत को यानी इस बेटे को मेरे हवाले किया था। अगर तू बीवी के लिए भी दुआ करता, बीवी को मेरे हवाले करता, हम इसकी भी हिफाजत करते। पकड़ अपनी इमानत, पकड़ अपना जिंदा बच्चा। ये है अल्लाह के रास्ते की ताकत, ये है अल्लाह के रास्ते की ताकत। जब आदमी कुर्बानियों में आगे बढ़ जाता है, मेहनत में आगे बढ़ जाता है, तो अल्लाह इसके घरों की, इसके बच्चों की निगरानी भी करते हैं। हमारी कुर्बानियां कमजोर हैं और कम हैं, और कईयों की तो है ही नहीं। हमारी कमजोर कुर्बानियां हैं, कम कुर्बानियां हैं, लेकिन कम कुर्बानियों पर भी अल्लाह हमें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। छोटी कुर्बानियों पर भी अल्लाह हमें इतना अता फरमा रहे हैं, इतनी ज्यादा अल्लाह बरकतें अता फरमा रहे हैं। हमारे दिनों में, हमारे घरों में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी हमारे घरों में नहीं है, कोई कमी हमारे घरों में नहीं है। ये दीन की बरकतें हैं, ये दावत की बरकतें हैं। मेरे भाइयों बहनों, जो लोग दीन के लिए कुर्बानी देते हैं, चाहे मर्द हैं चाहे औरत है, चाहे पहले जमाने में दें चाहे आखिरी जमाने में दें, आज भी अल्लाह की वही मदद है, आज भी अल्लाह की वही बरकत है, आज भी वही अल्लाह की रहमत है। इस जमाने का अल्लाह अलग नहीं है कि पहले जमाने का अल्लाह अलग था, इस जमाने का अल्लाह अलग है। वही अल्लाह जो पहले जमाने का था, वही अल्लाह आज है। वही कुरान जो पहला था, वही आज है। वही नमाज जो पहली थी, वही आज है। वही कलमा जो पहले था, वही आज है। तो बदला क्या है? यकीन बदला है, अमल बदले हैं, नियत बदली है, और कुछ नहीं बदला है। न आसमान बदले हैं, न सूरज बदला है, न चांद बदला है। नबी के जमाने की खजूर वही है, उसी मिठास के साथ। नबी के जमाने का सूरज वही है जो आज हमारे जमाने का है। नबी के जमाने का चांद वही है जो हमारे जमाने का है। नबी के जमाने का पानी वही है, वही पहाड़ है आज सारी दुनिया में, वही हवा है, वही चीजें हैं। न चीजें बदली हैं, न कायनात बदली है, हमारे अमल, हमारी नीयत बदली है। इसको सही करना है, इसको सही रूप पे लाना है। इतनी बात है। रहमतुल्लाह फरमाते थे, जिस मुसलमान के दिल में दीन के मिटने का गम ना हो, जिस मुसलमान के दिल में, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जिस मुसलमान के दिल में दीन के मिटने का गम ना हो, वो क़यामत में नबी का चेहरा नहीं देख पाएगा। ये फरमाते थे, और वो अच्छी मौत नहीं मरेगा। जिस मुसलमान के दिल में, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दीन के मिटने का गम ना हो, दीन के मिटने का गम ना हो, वो क़यामत में नबी की ज़ियारत नहीं कर पाएगा।
अब दुनिया में ही देख लो, दुनिया में ही देख लो कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। कितनी माएँ हैं, कितने भाई हैं जो यूं कहते हैं मैं इसको दूर ले जाओ, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसने मेरा हक दबाया है, इसने मेरा नुकसान किया है, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता, ले जाओ इसको, ना इसकी खुशी में ना गमी में। ऐसी मेरे भाइयों बहनों जिस नबी की मेहनत से आज हम कलमे वाले हैं, ईमान वाले हैं, जिस साहबा की मेहनत से आज हम कलमे वाले हैं, ईमान वाले हैं, जिस नबी ने सारी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी, बच्चे कुर्बान कर दिए, दिन कुर्बान कर दिए, हमें अगर थोड़ी मेहनत करनी पड़ गई हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं अगर मेहनत कर ली थोड़ी सी हमने, अल्लाह की कसम। वरना वही हाल होगा जो गलत लोगों का होता है, वही असर होगा जो गलत लोगों का होता है। इसलिए फरमाया हर औरत के दिल में, हर नमाजी के दिल में, हर दीनदार के दिल में दीन के मिटने का गम हो। जैसे बच्चे की तकलीफ का गम होता है, कारोबार के नुकसान का गम होता है, पैसे की कमी का गम होता है, दुकानों में कमी आ गई उसका आदमी को गम होता है, सेहत में कमी आ गई, भजन में कमी आ गई आदमी को गम होता है, पैसे में कमी आ गई, फसल में कमी आ गई आदमी को गमगीन होता है, आदमी परेशान होता है, आदमी खाना छोड़ देता है। मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़ी दौलत दीन ईमान है, सबसे बड़ी चीज दीन ईमान है, सबसे बड़ा सरमाया दीन ईमान है, सबसे बड़ी दौलत दीन ईमान है। कि जो बाहर की माया है, बाहर की माया है, मुल्क है, माल है, सोना है, चांदी है, डिग्री है, डॉक्टरी है, वकालत है, ये बाहर की माया है, बाहर की माया है। मेरे भाइयों बहनों, मरने के बाद जब आदमी को कब्र के अंदर रखा जाएगा, सुनो, मरने के बाद जब आदमी को कब्र के अंदर रखा जाएगा, कब्र के अंदर बाहर की माया दफन नहीं होगी, कब्र के अंदर बाहर की माया दफन होगी, बाहर का सोना चांदी दफन होगा, जितने चाहो कमा लो हीरे मोती, याद रखना कफन में जेब नहीं होती। हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कब्र के अंदर बाहर की माया दफन नहीं होगी, कब्र के अंदर बाहर की माया दफन नहीं होगी, कब्र के अंदर की माया दफन होगी। कब्र के अंदर दिल का ईमान कब्र के अंदर जाएगा, दिल की मोहब्बत अल्लाह रसूल की, दिल का सब्र, शुक्र, तकवा, नमाज, रोजा, हज, ये दीन की बातें कब्र के अंदर जाएंगी। बाहर की माया कब्र में दफन नहीं होगी, बाहर की माया बाहर रह जाएगी, बाहर के मकान बाहर रह जाएंगे, बाहर के कपड़े बाहर रह जाएंगे, रिश्तेदार भी बाहर रह जाएंगे, बस कब्र के अंदर का ईमान दाखिल होगा। उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं, ना उसके घरों में तज़किरे हैं, ना घरों में कोई तालीम है, ना घरों में कोई मेहनत है भी तो कभी कभी, है भी तो कभी कभी। मेरे भाइयों बहनों, हम कभी कभी खाना खाते हैं, हम कभी कभी पानी पीते हैं, हम कभी कभी रोटी खाते हैं। बताओ आप, हम कभी कभी खाना खाते, दिन में 3 टाइम खाते हैं, तब सीधी होती है कमर। कभी कभी पानी पीते हैं, कभी कभी दुकानदार दुकान खोलता है, कभी कभी हम खेतों में जाते हैं, कभी कभी दफ्तर जाता है बाबूजी। हर रोज दफ्तरों की फिक्र है, हर रोज खेतों की फिक्र है, हर रोज दुकानों की फिक्र करनी पड़ती है, हर रोज जिस्म की फिक्र करनी पड़ती है, कपड़ों की, घर की, कारोबार की, दुकानों की, डंगरों की, भैंसों की, हर रोज फिक्र करनी पड़ती है। मेरे भाई बहनों, जिस दीन पर अल्लाह खुश होते हैं, जिस दीन पर अल्लाह खुश होते हैं, जिस दीन पर अल्लाह खुश होते हैं, उस पर भी हर रोज मेहनत है, हर रोज दुआ है, हर रोज कुर्बानी है, उस पर भी मेहनत है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, हमें अफसोस हो इस चीज का कि हमें सीधे रास्ते पर चलते रहना है, आखिरत के रास्ते पे चलते रहना है, दीन के रास्ते पे चलते रहना है, हमें जन्नत के रास्ते तक पहुंचना है, अल्लाह तक हमें पहुंचना है। हमारी मंजिल दुकान नहीं है, हमारी मंजिल मुल्क नहीं है, हमारी मंजिल माल नहीं है, हमारी मंजिल डॉक्टरी नहीं है, हमारी मंजिल वकालत नहीं है, हमारी मंजिल करोड़पति बनना नहीं है, हमारी मंजिल लखपति बनना नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, हमारी मंजिल अल्लाह है, हमारी मंजिल अल्लाह है, हमारी मंजिल अल्लाह है, हमें अल्लाह तक पहुंचना है।
वकील भी खत्म हो जाएगा, वकालत भी खत्म हो जाएगी, डॉक्टर भी खत्म हो जाएगा मौत पर, डॉक्टरी भी खत्म हो जाएगी, माल भी खत्म हो जाएगा, मालदारी भी खत्म हो जाएगी, जमीन भी खत्म हो जाएगी, जमींदार भी खत्म हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, अल्लाह ताला फरमाते हैं जमीन भी खत्म, जमींदार भी खत्म, कुल्लु मन अलैहा फान, डॉक्टर भी खत्म, डॉक्टरी भी खत्म, कुल्लु मन अलैहा फान, वकालत भी खत्म, वकील भी खत्म, साइंस भी खत्म, साइंसदान भी खत्म, पानी भी खत्म, पानी वाले भी खत्म, पहाड़ भी खत्म, पहाड़ वाले भी खत्म। एक दिन क़यामत का आएगा, एक दिन क़यामत का आएगा, हर चीज फना हो जाएगी। जी, हम फना होने वाली चीजों के चक्कर में फना हो जाते हैं, हम छूटने वाली चीजों के चक्कर में अल्लाह को छोड़ देते हैं। हम दुनिया छूटने वाली है, अल्लाह छूटने वाले नहीं है। अल्लाह नहीं छूटेंगे और ना अल्लाह हमें छोड़ेंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस सारी जमीन के नक्शे ये हमारे लिए हैं, सारी नियमतें हमारे लिए हैं, सारी चीजें हमारे लिए हैं। दीन की मेहनत के जरिए से, ईमान की मेहनत के जरिए से, अल्लाह के रास्ते में निकलने के जरिए से ये बात चाही जा रही है, ये बात चाही जा रही है कि हम हमारे बच्चे, हम हमारी बहनें, हम हमारे बेटे, हम हमारे भाई पहले अल्लाह रसूल के दीन के लिए हैं, पहले दीन के लिए हैं, पहले अल्लाह के लिए हैं, पहले नबी के लिए हैं। दुनिया तो है ही हमारी और हमारे लिए, पैसा तो है ही हमारा हमारे लिए, कपड़े तो है ही हमारे लिए हैं, खाना पीना तो है ही हमारे लिए है। हजरत जी फरमाते हैं कि सारी दुनिया हमारे पर वार है, सारी दुनिया हमारे पर नशावर है, सारी नियामतें हमारे लिए कुर्बान, सारी नियामतें हमारे लिए कुर्बान, बकरे हमारे लिए कुर्बान, बकरियां हमारे लिए कुर्बान, मुर्गियां हमारे लिए कुर्बान, भैंसे हमारे लिए कुर्बान, सेब, अनार, टमाटर सब हमारे लिए कुर्बान, कपड़े हमारे लिए कुर्बान, बड़ी बड़ी नियामतें हमारे लिए कुर्बान, बड़े बड़ी सब्जियां हमारे लिए कुर्बान, गेहूं हमारे लिए कुर्बान, मक्की हमारे लिए कुर्बान, बड़ी बड़ी चीजें हमारे लिए कुर्बान। हम अल्लाह के लिए कुर्बान, हम दीन के लिए कुर्बान। यहाँ पर आओ अगर खैरियत चाहते हैं, वरना हालात अच्छे नहीं आ रहे अभी थोड़े दिन में, अच्छे हालात नहीं आने वाले। अब अच्छे दिन नहीं आने वाले, अच्छे दिन नहीं आएंगे। अब औलिया अल्लाह फरमा रहे हैं बुजुर्गान दिन, हाँ अच्छे दिन तो उसके होंगे जो दीन पर होगा, उसके होंगे अच्छे दिन, कब्र में भी अच्छे दिन, मौत के दिन भी अच्छे दिन, आखिरत में भी। अच्छे दिन तो दीन के साथ हैं, पैसे के साथ अच्छे दिन नहीं है। घर बैठे आफतें आती हैं, घर बैठे लोग घरों से निकाल दिए जाते हैं। सन 47 आया था ना, सन 47 कत्लेआम हुआ था, गदर हुआ था, यहाँ पंजाब, हरियाणा, कालाम सब कत्लेआम हुआ था। दिल्ली वालों ने, हैदर जी ने पहले ही बोल दिया था एक अजाब आने वाला है, 12-12 कोस तक चिराग नहीं जलेगा। इसका हल क्या है, इसका मुकाबला क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज हथियार नहीं है, मुकाबला नहीं है, गोलीबारी नहीं है। हजरत ने फरमाया था हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल जाओ और मस्जिदों में डेरे डाल दो, औरतें घरों में डेरे डाल दें। हर घर से एक आदमी अल्लाह के रास्ते में। बेशुमार जमातें बनी सन 47 में। एक जमात यहाँ खिदराबाद भी आई, बूढ़िया भी आई, 15 दिन अम्बाला जेल में रही, कुर्बानी दी उसने, मेहनत की। यहाँ दरिया में डाल दी थी, 19 आदमियों की जमात यहाँ दरिया में डाल दी थी पुलिस वालों ने। यहाँ क्यों आए, किसकी इजाजत से आए? दरिया ने उनकी हिफाजत की, उन्हें पार कर दिया। एक की भी मौत नहीं, एक कपड़ा भी नहीं बहाया, एक कपड़ा भी नहीं बहाया, एक कपड़ा भी नहीं बहाया।
تو لگ جانا چاہیے بھائی. کیا بات ہے؟ جاؤ ذرا ادھر. دوسری پڑھے, ساری بہنیں دوسری پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف مرہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد. اس لیے میرے بھائیو بہنوں, ہمیں ارادے کرنے ہیں, ہمیں نیتیں کرنی ہیں, ہمیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے, ہمارے روئے کا مالک اللہ ہے. حضرت جی فرماتے تھے مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تھوڑا سا جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. یہ فرماتے ہیں بڑے بزرگ قطب ابدال اولیاء اللہ, درویش قلندر, ہمارے ہمدرد, ہمارا بھلا چاہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, ورنہ سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑے گا. سن 47 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مہینے پہلے یہ بات بول دی تھی کہ تھوڑا سا جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, ورنہ سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑے گا. میرے بھائیوں بہنوں, 6 مہینے کے بعد غدر ہوا, 6 مہینے کے بعد قتل عام ہوا. عورتیں آٹا گوندتے آٹا چھوڑ کر بھاگی ہیں. یہ فرما رہے تھے حضرت جی, اور عورتیں دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر بھاگی. ملک بھی چھوڑ گئے, وہ جا کے دوسرے ملک میں بسے ہیں. علاقے بھی چھوڑ گئے, باغ بھی چھوڑ گئے. اس لیے فرماتے تھے حضرت جی کہ تھوڑا سا جان مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا, سب کچھ بچ جائے گا, سب کچھ بچ جائے گا. جانیں بھی بچیں گی, ایمان بھی بچے گا, کاروبار بھی بچیں گے, اور جو ہم سے جڑے گا اللہ اسے بھی بچائیں گے, اسے بھی بچائیں گے. اصحاب کہف, یہ جو دقیانوس بادشاہ تھا, یہ بت پرستی ہوتی تھی ان کے علاقے میں. یہ اپنے کو سجدے کراتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو, مجھے سجدہ کرو, میرے آگے جھکو. لیکن وہاں کے کچھ دیندار نوجوان تھے, 7 نوجوان, یہ بڑے اللہ والے تھے, ذکر والے تھے, اللہ ہی کو مانتے تھے, نبی کو مانتے تھے. انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ ملک ہی چھوڑ دیا, علاقے چھوڑ دیے, اپنے گھر چھوڑ دیا, اور چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے. ایک غار میں سو گئے, غار میں سو, ابھی بھی غار ہے. بادشاہ دقیانوس بت پرست بولتا تھا مجھے سجدہ کرو. سجدہ نبی کو بھی نہیں ہے, ولی کو کہاں سے ہو جائے گا. سجدہ نبی کو نہیں ہے, پیڑ کو کہاں سے ہو جائے گا. سجدہ نبی کو بھی نہیں ہے, پتھر کو کہاں سے ہو جائے گا. سجدہ نبی کو بھی نہیں ہے, مزار کو کہاں سے ہو جائے گا, بابے کو کہاں سے ہو جائے گا, پیروں کو کہاں سے ہو جائے گا, جب سجدہ نبی کو نہیں ہے. آج لوگ سجدے کرتے ہیں جا کے پیروں پہ, گلاب چڑھاتے ہیں, بھیلیاں چڑھاتے ہیں, اور اللہ ناراض ہوتے ہیں. اللہ کو سجدہ کرنا نہیں, قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں. ان 7 نوجوانوں نے اس بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیا, اپنا علاقہ چھوڑ دیا, اور جا کے غار میں سو گئے. ابھی بھی غار ہے, یونان کے اندر ہے. یونان جماعتیں جاتی ہیں, اس کو دیکھ کر آتی ہیں, بڑی دہشت ہے اس کے اندر, اندر نہیں جا پاتا کوئی, اتنا ڈر ہے. 7 نوجوان وہاں سو گئے. کیوں؟ وہ اللہ کے راستے میں نکلے. دیکھو, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, ایمان کو پھیلانے کے لیے نہیں. ایمان کو پھیلانا سب سے بڑا کام ہے دنیا میں. ایمان کو بچانا یہ بہت چھوٹا کام ہے, ایمان کو پھیلانا یہ سب سے بڑا عمل ہے. غار میں سو گئے,
गार में सो गए। अल्लाह ने सुकून की नींद डाल दी, सुकून की नींद डाल दी, सुकून की नींद डाल दी। उस गार की ज़मीन को अल्लाह ने हुक्म किया, वहाँ के कीड़े मकोड़ों को अल्लाह ने हुक्म किया, वहाँ के शेर चीतों को अल्लाह ने हुक्म किया कि मेरे मेहमान हैं, मेरे रास्ते में हैं, ईमान के लिए निकले हैं, मेरी रज़ा के लिए निकले हैं। ज़मीन को हुक्म दिया इनकी हिफाजत करो, कीड़े मकोड़ों को हुक्म दिया हिफाजत करो। जो सूरज निकलता था, ये जो सूरज है ना, यही चल रहा है, यही जब उस गार के मुंह के ऊपर से गुजरता था, ये दूसरी तरफ से गुजरता था ताकि उनके चेहरे पे रोशनी न पड़े। ये कुरान में है। अस्हाबे कहफ, सूरह कहफ। असहाब बोलते हैं साथियों को, जमातियों को। 7 नौजवानों की जमात थी, अल्लाह के रास्ते में निकले। इनके घर वालों ने भी इनको इजाजत दे दी, इनके घर वालों ने इनको इजाजत दे दी। इन्होंने सजदा नहीं किया बादशाह को, उसको खुदा नहीं कहा, और अल्लाह ही को सजदा करते रहे, अल्लाह ही की मदद मांगते रहे। मदद अल्लाह के पास है, किसी के पास मदद नहीं, किसी के पास मदद नहीं, अल्लाह के पास मदद है। अल्लाह ने सुकून की नींद डाल दी इन पर, सुकून की। 300 साल तक सोए रहे, 300 साल तक सोए रहे। बताओ, 300 साल तक रोटी के बगैर सोए रहे, पानी के बगैर सोए रहे, क्योंकि अल्लाह साथ है। रब राजी तो सब राजी। बिना पानी से जिंदा रहे, बिना हवा से जिंदा रहे, बिना नाश्ते से जिंदा रहे, बिना दोपहर के खाने से जिंदा रहे। अल्लाह फरमाते हैं मैं जिंदगी देता हूँ, बिना खाने से भी दे देता हूँ, बिना पानी से भी दे देता हूँ। इनकी नींद ही इनकी खुराक बन गई, इनकी नींद ही इनकी खुराक बन गई। बताओ, ऐसी मददें करेंगे अल्लाह। मैं कहना ये चाहता हूँ, इनके साथ एक कुत्ता था, कुत्ता असहाबे कहफ का कुत्ता, वो बाहर बैठा रहा। और जो बादशाह था जिसने इनको पकड़ने का हुक्म किया था, इनको मारने का हुक्म किया था, इनको गिरफ्तार करने का हुक्म किया, उसकी हुकूमत भी मिट गई। सोते सोते हुकूमत उसकी खत्म हो गई। ये सो रहे हैं, उसकी हुकूमत को अल्लाह ने उजाड़ दिया, उसे खत्म करा दिया। दूसरा नेक बादशाह आ गया। हजरत मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे कि तुम दावत का काम करो, तुम सोते रहोगे, अल्लाह बातिल को तोड़ देंगे। तुम सोए, तुम्हारे सोने पर अल्लाह बातिल को तोड़ देंगे। बादशाह भी खत्म हो गया, नई हुकूमत आ गई, अल्लाह वाला बादशाह आ गया। 300 साल के बाद नए बादशाह आ गए, उसको खत्म कर दिया अल्लाह ने। 300 साल के बाद उठे जिंदा। इनका जो कुत्ता है वो भी जिंदा रहा 300 साल तक। बुजुर्गों ने लिखा है, कुत्ते ने जमात का साथ दिया, कुत्ते ने जमात की खिदमत की, कुत्ते ने जमात की नुसरत की। ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह इसको रूहानी शक्ल देकर जन्नत में दाखिल करेंगे। बताओ, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कि जिन घरों में नमाज नहीं होती, जिन घरों में मेहमान नवाजी नहीं होती, जिन घरों में नमाज नहीं, मेहमान नवाजी नहीं, वो जिंदा ही मुर्दे हैं। वहाँ माल होगा, बरकत नहीं होगी, सामान होगा, सुकून नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, थोड़ी सी जिंदगी बाकी है। थोड़ा सा टाइम अल्लाह के रास्ते में देना है, अल्लाह के रास्ते में निकलना है। हम इरादा करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम नियत करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमारी नियत अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होगी, हमारी कोशिश अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होगी, हमारी फिक्रें अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होगी, हमारी नियत अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होगी। मेरे भाइयों बहनों, हम इरादे में कमजोरी न करें, हम इरादे में कंजूसी न करें। पहले जमाने के लोग, पहले जमाने की औरतें ऐसे इरादे करती थी। पहले जमाने की औरतें ऐसे इरादे करती थी कि वो दुनिया में कोई उनका मिसाल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु एक साहबिया के घर सो रहे, दावत थी आपकी दोपहर की, आप खाना खा के सो गए। थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए उठे,
उस साहबिया ने पूछा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने, या रसूलल्लाह कुछ खास बात पेश आई है? आप मुस्कुराते हुए उठे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मे हराम मुझे एक जमात दिखाई गई जो अल्लाह के रास्ते में जा रही है, समंदर के रास्ते से जा रही है, जो तख्तों पे आमने सामने बैठी है, जैसे बादशाह बैठते हैं ऐसे बैठी है, जो अल्लाह के रास्ते में जा रही है, अल्लाह के रास्ते में जा रही है। उसमें औरतें भी हैं, उसमें मर्द भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, उसमें मर्द भी हैं। एक जमात निकली है, अल्लाह के नबी को दिखाई ख्वाब के अंदर। तो औरत कहने लगी, जिसके अल्लाह के नबी आराम कर रहे थे, खाना खाया था, औरत कहने लगी सहाबिया उम्मे हराम, या रसूलल्लाह उस जमात में मैं भी तैयार हूँ, मेरा भी नाम लिख लीजिए और दुआ कर दीजिए, मैं भी उस जमात में जाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, तू भी उस जमात में जाएगी। तो भी शामिल कर लिया गया। बताओ, ये जन्नती औरतें भी अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तैयार हैं, नाम देने के लिए तैयार हैं, इरादा करने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद ये जमात तैयार हुई। उम्मे हराम भी यही औरत जिसको अल्लाह के नबी ने कहा था तू भी इस जमात में जाएगी, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद ये जमात तैयार हुई। उम्मे हराम अपने शोहर के साथ अल्लाह के रास्ते में निकली और अल्लाह के रास्ते में जाके शहीद हो गई और वहीं कब्र बनी। बताओ, औरतें अल्लाह के रास्ते में कब्रें बनवा रही हैं। अभी हम बिलासपुर में थे, 5 तारीख को वहाँ जोड़ था, वहाँ एक असम से मुसलमान आया मिलने के लिए, बिलासपुर वालों से वहाँ ठहरा हुआ था। हमने पूछा आप कैसे हैं? कि मैं यहाँ थोड़ी यानी 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैं जमात लेकर आया था, मेरी बीवी साथ थी, 5 औरतें थी, हम दिल्ली मरकज से आए थे, मेरी बीवी का इंतकाल जिला बिलासपुर हिमाचल में हुआ है, मैं उसकी कब्र की ज़ियारत करने आया हूँ। असम की औरतें दफन हो रही हैं हिमाचल में जी, तुम यहाँ गोबर उठाते उठाते दफन ना हो जाना, अल्लाह हिफाजत फरमाए जी। वो साथी अपनी बीवी से मिलने आया, कब्र देखने आया। बताओ, असम की औरत जिले में यहाँ शहीद हो गई। कितने सहाबा हैं जो सारी दुनिया में दफन है, कितनी औरतें हैं जो सारी दुनिया में दफन है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे बड़ों ने दीन को हमारे तक पहुंचाने के लिए खून दिया था, सहाबा ने खून दिया था, उनके बच्चों ने खून दिया था। 14 सहाबा बदर में शहीद हुए हैं, 14 सहाबा बदर में शहीद हुए हैं, 70 सहाबा ओहद में शहीद हुए हैं। हजरत ज़ैनब शहीद हुई है, सुमैया शहीद हुई है, उन्होंने खून दिया है। हम 3 दिन भी ना दें, हम 3 दिन भी ना दें और फिर ठीक के ठीक कि हम तो ठीक हैं। कितनी गई गुजरी बात है। तो अल्लाह के रास्ते में होते थे, पीछे इंतकाल हो जाते थे। अल्लाह के नबी की वापसी हो रही है अल्लाह के रास्ते से। अल्लाह के नबी सहाबा को लेकर मदीना में एंट्री हो रही है, मदीना में दाखिल हो रहे हैं तो लोग कब्रिस्तान से आ रहे हैं, लोग कब्रिस्तान से आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई तुम कब्रिस्तान से किसको दफन करके आ रहे हैं? अल्लाह के नबी अल्लाह के रास्ते में है, यानी जमात में है। जब वक्त पूरा करके मदीना में आए हैं तो कुछ सहाबा मदीना के कब्रिस्तान से घरों को लौट रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किसको दफन करके लौट रहे हैं? कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी गैर हाजिरी में उसको दफन करके आ रहे हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के रास्ते से आ रहे हैं और सहाबा बेटी को दफन करके आ रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमें कोई खबर नहीं, सामान सोबत का फल की खबर नहीं, हमें अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, हमें अपनी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। हमारे बड़े कल थे, आज नहीं है, हम आज हैं, कल नहीं होंगे। हमारे बड़े कल थे, कहाँ? यही थे, इसी दुनिया में थे, इन्हीं इलाकों में थे, इन्हीं शहरों में थे। वो भी यही कहते थे, हमारे पास कहाँ फुर्सत है, हम बड़े बिजी आदमी हैं, हमारे पास कहाँ फुर्सत है, मेरे बगैर बच्चों का क्या होगा, मेरे बगैर मेरे डंगरों का क्या होगा, मेरे बगैर मेरे घर का क्या होगा। यही शिर्क है, यही गुनाह है, यही गुनाह है।
یہ گناہ ہے یہ کہنا میرے بغیر میرے گھر کا کیا ہوگا. پہلے لوگ بھی یہی کہتے تھے آج وہ قبروں میں پڑے ہیں, ان کے بغیر گھر بھی اچھے چل رہے ہیں, ان کے بغیر دکانیں بھی چل رہی ہیں, ان کے بغیر پوتے بھی پڑ گئے, ان کے بغیر کھیت بھی آباد ہیں اور اچھے آباد ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی ہے, دینے والا رزق اللہ ہے, پانی برسانے والے اللہ ہیں, زندگی دینے والے اللہ ہیں. مولانا یوسف فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ تم اللہ کے راستے میں نکل کے دیکھو, تم اللہ کے راستے میں نکل کے دیکھو, تمہارے گھر اللہ کے حوالے, تمہارے گھر اللہ کے حوالے. اللہ رب ہے, اللہ مالک ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہنوں نیت کرو, جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں سب توبہ کرو. ہم نے دین کے کام میں کمی کی ہے, اعمال میں کمی کی ہے, عبادت میں کمی کی ہے, نیک کام کرنے میں کمی کی ہے, ہم نے فکروں میں کمی کی ہے. دنیا کی فکر میں کوئی کمی نہیں ہے, دنیا کے کاموں میں کوئی کمی نہیں ہے, دنیا کے اسباب میں کوئی کمی نہیں ہے, کاروبار میں, دکانوں میں, پیسے میں کوئی کمی نہیں آنے دی ہم نے آج تک, نہ گھر میں نہ کاروبار میں کمی آنے دی. بس ایمان میں کمی آئی ہے, اعمالوں میں کمی آئی ہے, نمازوں میں کمی آئی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی ہے. پوری دنیا میں دین آئے, پوری دنیا میں ایمان آئے, پوری دنیا میں قرآن زندہ ہو. اس نیت سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے کہ ہم بھی دیندار بنیں گے, پوری دنیا دین پر آئے, ہدایت پر آئے. جب اس نیت سے اللہ کے راستے میں نکلیں گے میرے بھائیوں بہنوں, اللہ ہماری مدد کرے گا, اللہ ہماری مدد کرے گا. ہمت مدد مرد خدا, ہمت مدد مدد خدا. ہمت کرو, کوشش کرو. جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں جن کے 3 دفعہ 3 دن لگ گئے ہیں وہ 10 دن کا نام دیں گی. جن کے 3 دفعہ 3 دن لگ گئے ہیں وہ 10 دن میں نام دیں گی. جن کے 10 دن لگ چکے ہیں وہ چیلے میں نام دیں گی. جن کا چیلا لگ چکا ہے وہ دوسرے چیلے میں نام دیں گی. جن کے 2 چیلے لگ چکے ہیں یہ دوسرے ملکوں میں جانے کی نیت کریں گی, دوسرے ملکوں میں جانے کی ارادے کریں گے. اور جن بہنوں کے ابھی 3 دن نہیں لگے, کوئی ایسی بات نہیں ہے گھبرانے والی. اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے, اللہ آپ سے خوش ہے. جتنی بہنیں یہاں آ چکی ہیں سب سے اللہ راضی ہے. جتنی بہنیں یہاں آ چکی ہیں سب سے اللہ راضی ہے, سب سے اللہ راضی ہے. اب اللہ راضی رہے, موت تک راضی رہے, اس لیے تھوڑی محنت کرنی ہے. کیونکہ ناراضگی بھی اپنوں سے ہی ہوتی ہے, ناراضگی گلہ بھی اپنوں سے ہی ہوتا ہے. ہم اپنے ہیں اللہ کے, ہم اپنے ہیں اللہ کے, کیوں اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے. ہم اپنے ہیں نبی کے, کیوں نبی ہمارے پاس ہے. اپنوں سے ہی گلہ ہوتا ہے, اپنوں سے ہی شکایت ہوتی ہے. ایمان والے اللہ کے ہیں, نبی والے اللہ کے ہیں. نیت کرو میرے بھائیوں بہنوں, کسی جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں جس کے 3 دن نہیں لگے اس کی الگ لسٹ بنا. جس کے 3 دن ابھی تک نہیں لگے اس کی الگ لسٹ بنانا, الگ. یعنی جس کے 1 دفعہ 3 دن لگ گئے ان کی بھی ایک پرچہ بنا لینا. پہلی دفعہ جو 3 دن لگائیں گی اسی میں 3 دن والیوں کے نام لکھ لینا, اور جن کے 3 دفعہ 3 دن لگ جائے وہ الگ پرچہ بنانا. جس کے 10 دن لگ چکے ہیں ان کا الگ پرچہ بنانا. ہمیں نگد نام چاہیے. یہاں سے 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد یا عید سے پہلے یا بعد میں وہ نگد میں ہی شمار کیے جائیں گے. تو نگد جماعتیں چاہیے 3 دن کی, نگد جماعتیں چاہیے 10 دن کی. نیت کرو انشاءاللہ. ساری بہنیں نام دو, لکھو نام.